this Mass is offered for these intentions. Soul of Victor Joseph by Eric Mary Chandekar. Soul of Victor Joseph by Rita Joseph. Soul of Father Pascal for Bruce by T.K. Verghese and family. Thanksgiving by Velankari Das. Thanksgiving by J.C. Thomas. Thanksgiving to St. Anthony by Johnson. Thanksgiving on the birthday of Jesus. Thanksgiving Mass by Suchita. Thanksgiving to St. Anthony by Viviana and family. Thanksgiving to St. Anthony by Eugene Modet. Soul of David D'Souza by Doris and Erin. Soul of Vincent Palgamal by Pauline Palgamal and family. Soul of Jaya Gonzalez by Deepaka. Soul of Mary and Lucy by Monica Henry. Thanksgiving Mass for promise and well-being and peace in the world by Mr. Patrick. Soul of Lazarus Anthony by Lavina Anthony. Intentions of donors. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. My dear brothers and sisters, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to my brothers and sisters that I have greatly sinned in my thoughts and my words, in what I have done, in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask, blessed Virgin Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us and forgive us all sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. O God, who through your word reconciled the human race to yourself in a wonderful way, grant, we pray, that with prompt devotion and eager faith, the Christian people may hasten towards the solemn celebration to come. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Are all your sons here? And he said, There
remains yet the youngest. But behold, he is keeping the sheep. And Samuel said to Jesse, Send and fetch him, for we will not sit down till he comes here. And he sent and brought him in. Now he was red, ruddy, and had beautiful eyes, and was handsome. And the Lord said, Arise, anoint him, for this is he. Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers. And the Spirit of the Lord came mightily upon David from that day forward. Word of the Lord. Thanks be to God. Your response. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Fresh and green are the pastures, where he gives me repose. Near restful waters he leads me, to revive my weary spirit. Response. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. He guides me along the right path. He is true to his name. If I should walk in the valley of darkness, no evil would I fear. You are there with your crook and your staff. With these you give me comfort. Response. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. You have prepared a banquet for me in the sight of my foes. My head you have anointed with oil. My cup is overflowing. Response. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Surely goodness and kindness shall follow me all the days of my life. The days in the Lord's own house shall I dwell forever and ever. Response. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Once you were darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light, for the fruit of life is found in all that is good and right and true. And try to learn what is pleasing to the Lord. Take no part in the unfruitful works of the darkness, but instead expose them. For it is a shame even to speak of the things that we do in secret. But when everything is exposed by the light, it becomes visible. For anything that becomes visible is light. Therefore it is said, Awake, O sleeper, and arise from the dead, and Christ shall give you life. The word of the Lord. Thanks be to God. Finally stand to Gospel acclamation. I am the light of the world, says the Lord. He who follows me will have the light of life. प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र समाचार प्रभु की जय। यीशु ने निकोदेमस से कहा, जिस तरह मूसा ने मानव भूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया, उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया।
जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा है कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता है, जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के एकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। दंडाज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई और मनुष्य ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कि कहीं उसके कर्म प्रकट ना हो जाएं, किंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के पास आता है, जिससे यह प्रकट हो जाए कि उसके कर्म ईश्वर की प्रेरणा से हुई है। प्रभु का सुसमाचार। कृष्ण में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस चौथे 40 समय पर चौथे सप्ताह में जब हम प्रवेश करते हैं तो प्रभु हमें यह चाहता है कि हम प्रभु के पास आए, करीब आए और उसकी जो कृपा है उससे हम प्राप्त करें। इस्राएल की जनता चुनी हुई प्रजा थी। चुनी हुई प्रजा होने के नाते उनका कर्तव्य था ईश्वर के साथ रहना, ईश्वर की आराधना करना और ईश्वर में बने रहना। लेकिन इस्राएली जनता सबको भूला दी और अपने कुकर्म वर्ग में चलने लगे। वे बुरे धर्म में फंस गए, वे बुरे राह में चलने लगे। तो उनको हर प्रकार की प्रताड़ना मिली, इसलिए उन्हें बाबुल का निर्वासन उन्हें मिला और इस प्रकार वे तड़पते रहे बहुत सालों तक। लेकिन ईश्वर का दिल निकलता है। अगर जब हम प्यारे भाइयों बहनों पश्चाताप करते हैं, हम अपने आप को प्रभु के पास लाते हैं, ईश्वर का दिल निकल जाता है और हमें अपनाने के लिए तैयार होता है। जिस प्रकार लौट उत्तर किस प्रकार उन्होंने अपनाया था, उसी प्रकार हमें भी वह चाहता है कि हम उनके पास आए। और आज के वचन में कहता है प्यारे भाइयों बहनों, इस संसार में इसलिए प्रभु को भेजा कि वह दोषी ना ठहराए, लेकिन इसलिए वह उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। ईश्वर जब मनुष्य को प्यार करता है वह जरूर उनकी ओर देखता है, उनकी ओर उनका दिल निकलता है और मुक्ति इसलिए दिलाया कि वह हम देख सकते हैं उनका प्रेम चाहते हैं। इस संसार में वह आया तो प्रेम, हम सबों के प्रेम के लिए आया, पापों को मिटाने के लिए आया और उस पाप को मिटाने के लिए आया और हमें अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए आया। और वही हुआ ईश्वर की योजना। तो आज हम जब यहाँ उपस्थित हैं, हम इस संसार में हैं, हम मुक्त हुए प्रजा हैं, लेकिन हमारा एक कर्तव्य होता है हम ईश्वर में बने रहें और ईश्वर के पास सदा आए, पश्चाताप की नहीं करते। भाइयों कृष्ण मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस अवसर पर जब हम चौथे सप्ताह में 40 के चौथे सप्ताह में प्रवेश कर गए हैं, ईश्वर की इच्छा है हम उसके पास आए, उनकी कृपाओं को प्राप्त करें। जिस प्रकार उन्होंने पुराने जमाने में सांप को ऊपर उठाकर मुझे इसको डाला, लोग उसको देखकर ठीक हो जाते थे, उसकी ओर देखते थे और जो भी बीमारी थी, जो भी तकलीफ थी,
उनका दूर हो जाता था। आज हम प्रभु के क्रूस को देखे, उसकी ओर देखे, हमारी सारी दुख तकलीफ सदर परेशानियां वह दे देता है, वह हमें जीवन देता है, हमें खुशियाँ देते हैं, हमें कृपाएं देते हैं, हमें आनंद देते हैं। और इस आशा के साथ हम प्रभु के पास आए और हम इसका बलिदान अर्पित करें। शुरू में मैं बताने के लिए भूल गया, आज हम फादर फ्रांसिस लियोनार्ड का बर्थडे मनाते हैं, तो कृपया उनका भी प्रार्थना कीजिए उनके लिए। आइए हम खड़े होकर अपना विश्वास प्रकट करेंगे। आई बिलीव इन वन गॉड, द फादर ऑलमाइटी, मेकर ऑफ हेवन एंड अर्थ, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made, for us men and for our salvation. He came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of Virgin Mary, and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the third day, in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one holy Catholic and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. The unfaithfulness of the people brought about the Babylonian exile, along with the utter destruction of the city of Jerusalem and the temple. Yet God showed his love for sending his Son to save the people. Our sins do not prevent God from showing his merciful love towards us. With confidence, let us place our petitions before him, say, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. Response, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. For the Pope, the Bishop, the clergy, and the religious, that as shepherds of the flock of Christ, they may care for the sheep. As a good shepherd cares for the sheep, we pray. Lord, hear our prayer. Our sufferings are temporary, for even the exile which the Babylonians forced upon the Israelites, and they will comparatively short period of time. Hence, let us pray that we may be given the grace to accept temporary setbacks and inconvenience we face in life. We pray. Lord, hear our prayer. That the dark areas of our being that cause us to commit sin may be removed, and that the light of Christ may pervade our being, so that we may become people of integrity and maturity. We pray. Lord, hear our prayer. That we all love our God and neighbor, and that there be love between parents and children, husband and wife, brother and sister, so that no person in this world may remain unloved and cared for. We pray. Lord, hear our prayer. For all of us present in this Eucharistic assembly, let the tender penance we have given
may be brought to completion so that the forthcoming events of Easter may benefit us for our spiritual growth, we pray. Lord, hear our prayer. Let us pray. God our Father, you saved the people in the wilderness by erecting the bronze serpent and brought the people exiled in Babylon by raising Cyrus as their liberator. Give us grace that faithfully following Jesus who died, rose, we may reach eternal life. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God, forever, amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God, forever, amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness, this wine we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the cup of joy. Blessed be God, blessed be God, blessed be God, forever, amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God, forever, amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God, forever, amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God. प्यारे भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति ता महिमा के लिए, हमारे समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए मेरे हाथों से बलिदान ग्रहण करे। आमीन। हे प्रभु, हम हर्षित मन से ये दान तेरे सम्मुख लाते हैं। ये आनंद जीवन के लिए हमारी औषधि है। ऐसी कृपा कर कि हम श्रद्धापूर्वक इनका आदर करें और समस्त संसार की मुक्ति के लिए इन्हें अर्पित करें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्यायसंगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने अंधकार में भटकती मानव जाति पर देह धारण का रहस्य प्रकट करके उससे विश्वास का दिव्य आलोक प्रदान किया और यह आदि पाप की दास्ता में जन्म लेने वालों को बपतिस्मा के जल से शुद्ध करके अपने दत्तक पुत्र पुत्रियां बना लिया। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सभी प्राणी नूतन गान से तेरी आराधना करते हैं और हम भी असंख्य स्वर्गदूतों के साथ तेरे यश की घोषणा करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर
स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है के आते हैं, स्वर्ग में प्रभु की जय। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, हे ईश्वर के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया, हमें मुक्त किया। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष एलायस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। आइए प्यारे भाइयों बहनों, उन आत्माओं को इस वेदी के समक्ष लाएं जिनके लिए आज विशेष रूप से यह मिस्सा बलिदान अर्पित करते हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ विशेषकर संत अंतनी, संत फ्रांसिस डी सेल्स, जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में है सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। आइए हम प्रभु के क्रूस को की ओर देखते हुए हमारे दुख तकलीफ झंझट परेशानियां हर प्रकार के दुखों को हम प्रभु को समर्पित करते हुए वही प्रार्थना दोहराएं जैसे प्रभु ने हमें सिखाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर
जैसे हम भी अपना अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हम परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य, तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर प्रेम भाव रखिए। कृष्ण शांति, कृष्ण शांति। ईश्वर के मेमने तो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने संसार के पाप देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं सच में क्या आप मेरे आवे कि एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंग हो जाए। कृष्ण का शरीर तथा जीवन As the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You strength, my shield, to you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. फिर जी गया है, वह खो गया था और फिर मिल गया है। हम प्रार्थना करें। ईश्वर तू इस संसार में अपने आने वाले प्रत्येक मनुष्य को ज्योति प्रदान करता है। अपनी कृपा के आलोक से हमारा हृदय ज्योतिर्मय कर दे कि हमारे विचार सदा तेरे योग्य हो और हम सच्चे हृदय से तुझे प्यार करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ इसमें निहित है, हे सृष्टिकर्ता, हे प्यारे प्रभु, हमारे मन को खोल और हृदय को स्पर्श कर कि हम तेरे वरदान इस सृष्टि का एक अभिन्न भाग बन जाए। कठिनाइयों से भरे मौजूदा समय में जो जरूरतमंदों के समीप हो, विशेष करके जो अत्यंत गरीब और निर्बल हैं,
विश्वव्यापी महामारी के परिणामों का सामना जब हम करते हैं, ऐसे समय वो हमें रचनात्मक एकजुटता स्थापित करने में हमारी सहायता कर हमें साहसी बना कि हम जनहित के लिए उपयुक्त आवश्यक परिवर्तनों को अपना सके। पहले से कहीं अधिक हम आपस में परस्परता और पारस्परिक निर्भरता का अनुभव कर सके। हमें सक्षम बना कि हम पृथ्वी के रुदन और गरीबों का करुण पुकार को सुन सके। उनकी मौजूदा पीड़ा उस प्रसव पीड़ा के समान बन जाए जिसके द्वारा अधिक भाईचारे और संपोषित पृथ्वी का जन्म हो सके। क्रिस्तों की सहायता माता मरियम की प्रेम में दृष्टि करे हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रणाम होए तेरा चावे तेरा राज्य आवे तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे मिले और हमारे काम की क्षमा कर जैसे हम प्रार्थना करते हैं और उनको शैतान की बुराई से बचा। प्रणाम अब बारे जैसे आशीष के लिए सिर झुकाएं। हे प्रभु, अपने भक्तों की पुकार पर ध्यान दे और दुर्बलों को सबल बना दे। मृत्यु के अंधकार में भटकने वालों को शाश्वत ज्योति तथा जीवन प्रदान कर। इस तरह सारी बुराइयों से मुक्त होकर हम ज्योति तक पहुंच सके, ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। दिल का दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु, कोई तुझ सा देखा ही नहीं।